Hi everyone, welcome back to the channel. So guys, if you are a RBI Grade B aspirant, you are preparing for RBI Grade B, I know something about you. I know that one point that is giving you a major headache right now is current affairs. Current affairs are so vast that they are almost impossible to cover. And when we try to cover the vastness of those current affairs, which is like a globe, then the next problem comes is that of a retention. इतना retain कौन करे भाई, इतना data facts रट्टा कौन मारे. Well, in this video, I'm going to solve this problem. I'm going to give you some tips which can solve this problem for you. ठीक है, and this will help you cover GA 3x faster. I promise you. अगर आप ये सारे tips follow करेंगे, then instead of following an ideal plan, if you follow this, you can cover GA 3x faster. But I also want to add a disclaimer that this can be a risky proposition. But again, if you are lost, if you are stretched, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, then this is the video for you. और जो लोग पहले ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रैक पे हैं, वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं. बट जिनको लग रहा है कि अभी जरूरत है एक डोज की, कि करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू. तो सबसे पहले तो देखिए, एक आइडियल प्लान में इट माइट हैव बीन फेड इनटू योर माइंड कि यार 9-10 महीने के करंट अफेयर्स करो, आरबीआई में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और उसको करने के लिए मेरे हिसाब से यू नीड एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स डेली to cover 9 to 10 months of current affairs. But is this possible? The answer is no, right? I mean, yes, this is definitely not possible for a working aspirant, but even for a non-working aspirant to spend 6 hours on something which can be really boring, really irritating, really testing in terms of retaining it, I think this is very difficult. तो हम क्या कर सकते हैं? Now I remember talking to one of the RBI Grade B officer right last year who cleared the exam last year. मैंने उनसे पूछा कि आपने जीए कैसे मैनेज की थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे लिए 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे व्हेन आई स्टार्टेड विद माय प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स. वंस आई गॉट द आंसर टू दैट, आई वाज एबल टू मैनेज माय प्रिपरेशन रियली वेल. वो 3 क्वेश्चंस क्या थे जो आपको भी आज पूछने चाहिए, समझने चाहिए? सबसे पहला, क्या पढ़ना है? व्हाट इज माय स्कोप ऑफ प्रिपरेशन? शुड आई ओनली फोकस ऑन जीए? शुड आई आल्सो फोकस ऑन रिपोर्ट, स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस? एज इन व्हाट इज माय ओवरऑल स्कोप ऑफ प्रिपरेशन? सेकंड क्वेश्चन इज कितना पढ़ना है भैया, इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी मंथ्स यू नीड टू स्टडी, बिकॉज देयर आर different opinions. 6 months, 9 months, 3 months, 5 months, 12 months. Now you need to decide full and final here without any confusion कि आपको कितने महीने का पढ़ना है, which can give you value for your effort. पढ़ने को तो 24 महीने का भी पढ़ लो, ठीक है, but is it feasible? No, right? And the third is the most important, right? कैसे पढ़ना है? Even if you are aware क्या पढ़ना है, मेरा क्या स्कोप है, कितने महीने का पढ़ना है, बट उसको पढ़ना कैसे है? Because whenever you read something, you would always need that knowledge of understanding of the exam कि यार इसमें क्या relevant है, क्या irrelevant है, because then only you would be able to filter out the content. तो इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या पढ़ना है? काफी लोगों को लगता है सिर्फ जीए पढ़नी है, which is like normal जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, डिफेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट नहीं, उनके लिए शायद उनको आसान लग रहा होगा, बट इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज द स्कोप इज रियली वास्ट. अलॉन्ग विद जीए आपको रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, स्कीम्स भी पढ़नी है, आरबीआई नोटिफिकेशंस भी पढ़नी है, स्लैश फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड ईएसआई करंट अफेयर्स. सो द स्कोप इज रियली वास्ट. बट इसको कैसे आसान किया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से द ओनली रिस्क दैट यू कैन टेक राइट नाउ, which actually I would not suggest if you would have started 5 months back. But अभी टाइम कम है, so I would give you this tip. Reports and schemes आपके phase 1 में 10 से 12 नंबर की आती हैं. And to cover this holistically is a very time consuming process. तो आप क्या कर सकते हैं कि reports and schemes के लिए you just follow these sessions on YouTube. हम भी कंडक्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग कंडक्ट करेंगे, मैराथन्स भी होंगी. You just follow them. Those sessions in my point of view are going to be sufficient for your preparation for reports and schemes, at least for phase 1. phase 2 के लिए बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट अगेन अगर बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हो तो यार ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा जीए, ईएसआई, करंट अफेयर्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, इनको प्रॉपर कीजिए, एज इन यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम आउट ऑफ दीज एरियाज. बट इसको आप सेशंस के थ्रू कवर करेंगे तो आपको बहुत बहुत टाइम बच जाएगा. अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि सेशंस में हम आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे, काफी ज्यादा करवाएंगे, सो दैट मैक्सिमम पोर्शन गेट्स कवर्ड हियर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका काफी टाइम बच सकता है, राइट? लॉट्स ऑफ आवर्स ऑफ योर प्रिपरेशन कैन बी सेव्ड हियर इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस सेशंस. और नेक्स्ट है कितना पढ़ना है, हाउ मच टू स्टडी. देखिए, अभी काफी लोग, जैसा मैंने बताया था, 9, 10, 12 महीने बोलेंगे. दे आर राइट इन देयर ओन ओपिनियन, क्योंकि शायद कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, बट इज इट रियली वर्थ इट? In my opinion, no.
Why? Because I simply follow this 3/5 rule. I always tell my students कि ideally you should be going for this 5 months plan, right? 5 months of current affairs. उसको अच्छे से रिवाइज जरूर करना है, ये नहीं सिर्फ पढ़ देना है, बिकॉज अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया, द डेटा शोज दैट यू विल गेट ऑलमोस्ट लाइक 80 to 85% ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द 5 months ऑफ करंट अफेयर्स, दैट इज द 5 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग योर एग्जाम. तो क्या होंगे वो? फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. ठीक है, तो ये एक अप्रोच है. अब ये बाकी 15% शायद यहां से आएंगे, 8th मंथ से, 9th मंथ से, 10th मंथ से, 12th मंथ से. तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत टाइम है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ प्रूडेंट अप्रोच इफ यू आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम, बिकॉज it's more prudent, more advisable that you use that time in revising these 5 months of current affairs. ज्यादा के चक्कर में कि ये ना हो कि बिल्कुल ही रिटेंशन आ रहे और एग्जाम क्लियर ना हो. बट इवन शॉर्टर अप्रोच, इफ यू रियली स्ट्रगलिंग, स्ट्रेच, वर्किंग हो, लेट आ रहे हो, नहीं मैनेज हो रहा है, नहीं होता है यार कई बार, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में. तो इवन 3 months ऑफ करंट अफेयर्स कैन बी सफिशिएंट फॉर यू. तो इन 3 months को लेकिन हमें 2 बार रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज हेयर वी कैन नॉट टेक अ रिस्क कि 3 महीने का पढ़ के गए और उसमें से भी हमें क्वेश्चंस नहीं याद आ रहे हैं, हालांकि हमने पढ़ रखे हैं. वैसा नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 3 months यानी कि अप्रैल, मई, जून ही पढ़ के जाएं. फेब, मार्च वी विल नॉट लीव इट कंप्लीटली, रेदर हम उसको सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करेंगे. कि फेब और मार्च की हम पीडीएफ्स ना पढ़ें, लेकिन whatsoever MCQs we can get, पेड कोर्स में, यूट्यूब पे, फ्री वेबसाइट से, whatsoever MCQs we can get for those 2 months, that is Feb and March, we shall be doing it. ये बहुत अच्छी अप्रोच है, मिक्स्ड अप्रोच है. 3 महीने अच्छे से कर लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, फेब, मार्च को हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिया. ठीक है, तो इसमें भी आई फील कि आप 70 to 75% ऑफ क्वेश्चंस would be kind of that you have read this already in your preparation, which is really good number. अब ये अप्रोच फॉलो करने से डोंट एक्सपेक्ट कि आपके 65 नंबर आ जाएंगे 80 में से या 60 आ जाएंगे. ऑब्वियसली यू वुड हैव टू टेक अ कट ऑन योर मार्क्स, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज एनीथिंग राइट नाउ, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, राइट? मतलब अब मरने से बेटर तो अच्छा है कि सरवाइव किया जाए, और सरवाइव करने का सबसे बेटर तरीका है जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं राइट नाउ, इज दिस वन. ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट कर लो. आई थिंक दिस इज अ विनिंग स्ट्रेटजी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर रियली फीलिंग लॉस्ट राइट नाउ. और हाउ टू स्टडी में, एज आई टोल्ड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि एग्जाम की नीड क्या है. Though this will become more clear if you try to watch other videos and try to analyze previous year papers, but still मैं आपको कुछ hints दूंगा, उनको ध्यान से सुनिएगा. जीए में कुछ टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन न्यूज, जैसे कि दीपिका मिश्रा फर्स्ट विमेन ऑफ एयर ऑफिसर बनी है, एयरफोर्स ऑफिसर बनी है टू गेट द गैलेंट्री अवार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस काइंड ऑफ फर्स्ट इन न्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैंकिंग में एनी मर्जर्स, एनी लाइसेंसेस गिवन, एनी मेजर अपॉइंटमेंट्स, फॉर एग्जांपल Ajay Banga has been appointed to, I think, World Bank, so that is important. MOUs, UIDAI has recently signed an MOU with Razorpay. So if any central government entity, state government entity signs MOU with any other government entity or a private entity, that is important for you. Appointments, as I talked about, appointment of Ajay Banga. Then sports, right? A lot of events are happening. Women IPL, men's IPL, Khelo India Games. So they can ask you questions related to venue, winner, runner-up, future venues, etc., etc. Then summits, right? For example, G20 summit, India में हो रहा है. Expected है question आएगा. Even within G20 summits, the important milestones, the 100th meeting in that G20 summit under the presidency of India was held in Varanasi. तो ऐसे questions काफी ज्यादा important बन जाते हैं. Awards, ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ऑस्कर्स, आरआरआर को मिला, एलिफेंट विस्कस को मिला है अभी फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री. तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यू शुड बी रिमेम्बरिंग बाय हार्ट. सो दीज आर द सम एरियाज इन जीए. देन फॉर रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. अगर लॉस्ट हो, सिर्फ सेशंस और मैराथन्स अटेंड करो. थोड़ा सा बाद में मुश्किल आएगा फेज 2 में, बट देन इट्स बेटर देन टू गिव अप राइट नाउ, इज टू फाइट एंड लेटर पे मोर एफर्ट, give more effort to reports and schemes. आरबीआई नोटिफिकेशंस में जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बट जस्ट फोकस ऑन डेटा. जो भी नंबर्स हैं रेगुलेशन से रिलेटेड, कि इसमें मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, इसमें मिनिमम डिपॉजिट क्या होना चाहिए, दोस नंबर्स यू नीड टू रिमेंबर वेरी वेरी
swiftly. And in ESI current affairs, I think 4 areas, 4 tags: health, education, employment, and social justice. Social justice can be related to children, women, then backward classes, minorities. All those news related to social justice within these areas are very, very important for your exam. तो ये कुछ tags हैं ESI current affairs में where you can focus more, and when I say focus more means you revise them again and again, you read them again and again so that there is no chance of you forgetting them, at least forgetting them, not forgetting them before your exam. So ये कुछ आपको ESI current affairs में करना पड़ेगा. So this is more about like how to study. I've told you. Again, if you need a more clarity on this, go through the previous year papers. बाकी मेजर जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, इवन इफ यू ट्राई टू रीड 3 months ऑफ करंट अफेयर्स, रिटेंशन. नहीं याद रहते हैं यार करंट अफेयर्स, जितना मर्जी एफर्ट डालो करंट अफेयर्स नहीं याद रहते हैं. ठीक है, सपनों में भी आपके करंट अफेयर्स आने शुरू हो गए होंगे. अगर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी, जिसमें बोला गया है कि वी एक्चुअली फॉरगेट व्हाट वी स्टडी विद इन 1 day. मतलब हम अराउंड 50% हम भूल जाते हैं विद इन 1 day. और 6 days के बाद, मतलब ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर अ वीक, वी ओनली रिमेंबर 25% ऑफ व्हाट वी हैड स्टडीड. So retention is going to be a major challenge, and that scientific study itself says that there is a rule to remember, 1-1-1 rule, which is like जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको आप immediately same day रिवाइज करें, फिर विद इन 1 week रिवाइज करें, एंड विद इन 1 month रिवाइज करें. मतलब 3 रिविजन्स बोल रहे हैं, which is not easy, right? I can understand. और इसका ट्रैक रखना बहुत जरूरी है कि जो एक मई को पढ़ा है उसको 1 जून को रिवाइज करना है, 2 मई को पढ़ा है 2 जून को रिवाइज करना है. So this is going to be really difficult, but you can try to implement something like this. The idea is that the more you revise, the better you become at journal awareness or the current affairs. तो इसको हम कैसे implement कर सकते हैं? देखिए, जो भी आप पढ़ेंगे same day तो वहां से रिवाइज कर ही लेंगे. After 1 week, I would say that again revise through the same PDF that you would have read, because that would really make the things kind of permanent in your mind. और 1 month के बाद ऑब्वियसली यू वुड नॉट हैव टाइम यार, जो 1 मई को पढ़ा था उस 1 जून को पूरा कैसे रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज यू वुड हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑन योर प्लेट. सो एटलीस्ट रिवाइज देम थ्रू द एमसीक्यूज. दैट विल मेक योर ब्रेन सेल्स टिकल एंड जनरेट दोज रिस्पॉन्सेज इन योर माइंड विच विल मेक यू कि हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ था, मुझे याद आ रहा है. तो वो बहुत जरूरी है. और फाइनल रिवीजन जो भी आप विद इन 1 week ऑफ योर एग्जाम करेंगे वो तो आपको करनी ही पड़ेगी. उसमें मॉक टेस्ट तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, बट शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे. सो आइदर मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स या जो भी हाईलाइट वगैरह कीजिए, क्योंकि बाद में पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होगा. जैसे हम अपने कोर्स में बूस्टर देंगे, बूस्टर, राइट, उसमें हम बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके देंगे सो दैट यू कैन रिवाइज इट वेरी वेरी क्विकली. एंड ऑलवेज लर्न टू ईट द फ्रॉग, व्हिच लिटरली डज नॉट मीन कि आपको फ्रॉग को खाना है, which actually means that try to pick up the thing which is most complicated, most difficult to retain in the morning itself. Morning में you're fresh, so try to take that challenge. जो भी चीज मुश्किल लग रही है, नहीं हो रही है, मैनेज नहीं हो रही है, रिटेन नहीं हो रही है, उसको मॉर्निंग में उठाओ. ठीक है, उस प्रॉब्लम को मॉर्निंग में ही सॉल्व करो, एंड सी यू विल बी you will feel lot satisfied throughout your day and you will be more productive. So this is all I can say, guys. और मैं यही कहना चाहूंगा, I know many of you might be going through a difficult time emotionally, mentally. ठीक है, ड्रेन हो रहे होगे आप मेंटली, मुझे पता है, बिकॉज देयर इज लॉट टू कवर एंड नेगेटिव थॉट्स, एक्साइटमेंट, बहुत कुछ चल रहा होगा आपके अंदर. बट वी नीड टू ओवरकम ऑल दिस, राइट? वी नीड टू focus on our main vision, on our main goal, and we should not be terrified by all this distraction that is happening to us. We should just handle that by focusing on our goal. और वो गोल एक ही है, वो गोल बहुत ही अच्छा गोल है, एक ही है, सच्चे मन का वो गोल है आपका, that you want to become RBI Grade B officer and serve this nation in your capacity of RBI Grade B officer. So मैं ये कहूंगा, लगे रहो, we are with you. We will bring more such sessions, more revision of all your current affairs on YouTube in the paid courses. So don't worry about that. It's just a start. We are with you. I just want all of you to make this honest effort from your side for the next 60 days, which are left before your phase 1, and you will see the result. Don't give up. Don't give up. Just be your best, or just be the best version of yourself right now. Have a nice day. Bye bye. Namaste. Jai Hind.